beyond the ordinary to make your dreams come true. Kudos to you for joining us on the Metaverse adventure. You are truly remarkable. Behold our Metaverse city where dreams ready to continue your journey or explore further. The Metaverse is your playground. Until next time, remember, it's a world of endless wonders. Join the revolution. Embrace the metaverse where business transcend boundaries. A new era of virtual business universe. The Soilverse. That virtual city was none other than Amchi Mumbai in Metaverse. In a journey termed as transformation, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis took to X to unveil this blockchain-based virtual portal called the Mumbai Megapolis Metaverse. Through an interactive 3D and virtual reality-based interface, this free-of-cost platform will provide Mumbaikars an immersive insight into the ongoing infrastructure developments in and around Mumbai. The platform is available on Android and Apple app stores as well as on the website. So let's dive in on what all it has to offer at the moment. Let's first take you through the website. The website will first ask you whether you want to explore the city in VR or 3D. Let's click on 3D. Then it will prompt you to enter your name and phone number, which you also have an option to skip. After a slick intro into the Mumbai Megapolis Metaverse, it will take you to a 3D Mumbai map on which various infrastructure projects are mentioned. Once in, you can use your mouse to navigate around the map and click on a specific project to know more about it. When clicked on a specific project, it takes you through the specifications about that project as well as its benefits. Not only that, you can filter the projects based on their focus, such as fuel-saving projects, time-saving projects, projects that will uplift the quality of life or are carbon neutral. On the top right, they have included more interactive features. You can design and modify the existing projects as per your creativity. Play games or even take this quiz which has MCQ style questions related to Mumbai. Now let's go to the Mac OS app. The first iteration of the app available on the Apple and Android seemed smooth. As you open the app, the layout is not like the website with an interactive map
but options to view animated versions of the specific projects. Once you select a particular project, it takes you through an interactive video which you can navigate left, right, up and down and see what the project looks like. The platform is an initiative by the Maharashtra government along with the Tech Entrepreneurs Association of Mumbai and is powered by Meta along with several other players. While this interactive map is indeed a step forward to transparency towards ongoing projects, how well Mumbaikas respond to it is what we have to wait and watch. Hope you found How to set up. Hello world, I am Metra, your AI-enabled metaverse guide. I am here to help you explore the Metasoilverse, a new and sustainable metaverse. In the Metasoilverse, you can create anything you can imagine. You can build your own virtual world, start a business, or simply explore and connect with others from all over the world. I can help you do it all. From providing useful insights, to translating languages, to connecting you with the big brands, I'm your one-stop shop for success. But what makes me truly unique is my ability to learn and grow. The more I interact with people, the better I become at understanding their needs and providing them with the assistance they require. I'm here today with a groundbreaking opportunity. Join us on OpenSea for the initial parcel offerings, IPO, on November 10th. If you're looking for a new and exciting way to connect with the world around you, this is your chance to secure land next to our innovative and thrilling Prime Plaza and build a better future in the Metasoilverse. Let's meet here soon. Hey, good evening everyone and welcome to मैनेजमेंट डॉक्टर अमित चौधरी जी को हम सब की ओर से हैप्पी बर्थडे और बर्थडे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की मीटिंग की शुरुआत जो है वो बर्थडे से कर रहे हैं। चैट बॉक्स जो है मैंने ओपन कर दिया है, फटाफट जो है वो आप बर्थडे विश डालिए, आप विश कीजिए हमारे कोर मैनेजमेंट जो है वो डॉक्टर अमित चौधरी जी से, और साथ साथ में बताइए अब मीटिंग की शुरुआत जो है वो जोरों शोरों से आज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो आज आपके सामने जो है वो बताने वाले। मेरा नाम भूषण कुलकर्णी है। आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जो लोग 2 डिवाइस पे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट जो है वो अपना डिवाइस जो है वो पहले या तो वो YouTube पे चला जाए अगर जिनको देखना है YouTube के ऊपर, अदरवाइज जो है वो यहाँ पर जूम के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लोग एक ही डिवाइस के ऊपर हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो YouTube पर चले जाइए। इसको लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया गया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आज पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं ये इस फ्री ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। सही जो है वो मीटिंग और सही चीज़ों के साथ में जो है वो लगातार हम जो है वो अपने आप को सभी लोगों को अपडेट कर रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन, आप सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। So we have a very special project as we are connected with Mr. The project is metasoilverse.com and the next the website is thesoilverse.com। ये पूरी दोनों वेबसाइट जो है वो आप चीज़ों को पढ़िए समझिए ताकि और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जान पाएं और कंटेंट और जो चीज़ें बनने वाली हैं उन सभी के ऊपर जो है वो आप इंफॉर्मेशन और अपडेट्स ले पाए। सो आप सब लोग अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं, जो लोग जूम के ऊपर जो है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि YouTube का जो लिंक ऊपर सामने जो दिया हुआ है वो इवन आपके चैट बॉक्स में भी मैंने YouTube का जो है वो लिंक जो है वो डाला हुआ है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो YouTube के लिंक को भी उतना ही प्रमोट करें अपनी टीम के ऊपर। जो लोग नहीं आ पाए उनसे भी स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों को भी ये लिंक जो है वो पहुंचाए। सो 1000+ फुल हाउस, अमेजिंग जो है वो इंफॉर्मेशन आज आने वाली है। बहुत सारी चीजें आज अपडेट्स आने वाली हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सुपर डुपर। अगर आप सब लोग मेरे जैसे या मेरे जैसे एक्साइटेड हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट हैं वो एक्साइटमेंट मुझे दिखाए और लिखे यस आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। फटाफट जो है वो लिखे सुपर डुपर आई एम एक्साइटेड, 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 ताकि पता चले कि कौन लोग जो है वो कितने लोग जो है वो एक्साइटेड हैं, मुझे दिखे जाए।
वेरी गुड। और बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड लिख सके, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जो हैं वो सुपर एक्साइटेड है। कितने लोगों ने ई कैश से पार्सल्स खरीद लिए हैं, कितने लोगों ने ई कैश से पार्सल्स खरीद लिए हैं, कितने लोगों ने पार्सल्स जो है वो खरीद लिए हैं? अगर हाँ है तो हाँ, ये पार्सल 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 लिख दो, पार्सल 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 पार्सल। मार्केट जो है वो पार्सल 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 होना चाहिए। अभी जो है वो नया जनरेशन जो है, वेब 3 का जो जनरेशन है, उसमें पार्सल्स के जो है वो बिजनेस के पार्सल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सभी लोग लिखेंगे पार्सल 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 पार्सल। हाँ, आई हैव बाय वन पार्सल, $500 किसी ने किया, $1000 किसी ने किया। जैसी जैसी जिसकी समझ, जैसे जैसी जिसकी बाइंग कैपेसिटी, जैसे जिसकी चीजें जो उन्होंने पहले से हेल्प मेहनत करके रखी है उनके पास ज्यादा, थोड़े लोगों के पास थोड़े। तो पार्सल पार्सल पार्सल, सभी जगह पर पार्सल की दुनिया। IPO 1 में जिसने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के लिए अब IPO 2 आ रहा है। अब IPO 2 का एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है। बाइनांस के बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी अब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आना शुरू हो चुकी है कि अब जो है वो पार्सल पर 2.0 को लेकर पूरा मार्केट जो है वो सुपर डुपर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सो सुपर डुपर वेब 2.0 की दुनिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर जो लोग जा सकते हैं, सो प्लीज यूट्यूब के ऊपर लाइव जो है वो देखें। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब की लिंक को भी साथ साथ में प्रमोट करें। सो थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे हमारे बिजनेस की, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। पिछले 75 साल में जो हमने नहीं पार्टिसिपेट किया, इंडिया इतना सारा उन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता था। आप समझो GoDaddy.com या पता नहीं कौन सी कंपनियां जो है वो वर्ल्ड में उन्होंने मार्केट में अच्छी खासी जगह बना ली, लेकिन हमें कहीं पे भी जो है वो ऐसे IPOs में या ICOs में या IDOs में हमें कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था। ये ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो है वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। हम जो है वो पहले ये तकलीफ लगती थी या पता नहीं क्या होगा ऐसा लगता था, दिस इज हार्ड ऐसा लगता था, दिस इज डिफिकल्ट ऐसा लगता था। लेकिन हमारे सभी ट्रेनर्स, हमारे सभी मैनेजमेंट, हमारी कोर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग की लगातार चीजों की वजह से लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। एंड उन्होंने कहा कि यस, आई विल गेट बेटर एट विद प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट। और कभी भी किसी ने लोगों ने छोड़ा नहीं, आई विल गिव अप ऐसा नहीं कहा। और लोगों ने कहा कि हम डिफरेंट तरीके से इन चीजों को समझेंगे और ज्यादा आगे चीजें समझेंगे। हमने मिस्टेक कर दी या हमने क्यों ऐसा किया, उसकी जगह पर हमने कहा कि मिस्टेक्स जो है वो सीखने के लिए होती है। लोगों ने सीखा उसको और ज्यादा चीजें अच्छी तरह से समझें। और जो है वो हम यहाँ अच्छे नहीं हैं या मुझे ये नहीं समझ में आता, ऐसी चीजों को ना यूज करते हुए कि मैं यहाँ पर कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाऊँ, ये सभी चीजों के ऊपर हमारा माइंडसेट जो है वो हमने पॉजिटिव किया। और उसी पॉजिटिविटी की वजह से ये जो पूरा टैलेंट जो है वो उभर के बाहर आया। देश का जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आया। हिंदुस्तान के जो माइक्रो जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर पाए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए, नए लेवल के ऊपर ब्लॉकचेन, मेटावर्स और सभी चीजों को जान पाए। जो आज 140 करोड़ लोगों में से अगर हम देखा जाए तो 3.9% लोग जो हैं वो ब्लॉकचेन के यूजर्स हैं। यानी कि वर्ल्ड के 3.9%, यानी कि 300 मिलियन लोगों में से अगर हम लोग अपने आप को देख रहे हैं इन 1000 लोगों में जो आज इस जूम के ऊपर है, तो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि हम जो है वो सही जगह पर अपनी चीजों को आगे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आगे हम इन चीजों को और ज्यादा आगे समझते रहेंगे। तो हमें सोच अपने बड़ी रखनी है, सोच को आगे रखना है। नई दुनिया और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आज जो है वो हम ऐसी मीटिंग से अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, इंफॉर्मेटिव रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। साथ साथ में हम अपने ये जो नॉलेज हमारे पास है वो नॉलेज दूसरों के साथ भी हम शेयर करते हैं। तो आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे हो। आप अपनी अपने घरों पे, अपने अपनी गाड़ी से कोई चला रहा है, कोई घर में है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसको जो है वो थोड़ा जो है वो ध्यान से इसको सुने। अगर आप कार चला रहे हैं तो प्लीज रोड पे ध्यान दें, सिर्फ इस चीजों बातों को सुने। और जो चीजें मेजर पार्ट है, जो जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं मार्केट में पूछे जाते हैं, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयत्न करें। यानी कि मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से ये ब्लॉकचेन काम करती हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन कैसे कितनी होती हैं, कैसे कितनी अलग अलग प्रकार की ब्लॉकचेन्स होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस आने वाले हैं, आगे की फ्यूचरिस्टिक जो ब्लॉकचेन्स हैं वहां पर बिटकॉइन को लेकर किस तरह से साथ में कनेक्ट किया जा सकता है, फ्यूचरिस्टिक ब्लॉकचेन के
जो एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम इसको क्लियर भी करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, लोगों के दिमाग में लगता है कि करेंसी यानी कोई पैसा होगा या कोई इससे जो है वो फिएट करेंसी की तरह काम करता होगा, तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक वन ऑफ द टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जो डिजिट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में, जो चीज़ें ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रखने के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। इवन बिटकॉइन क्या होता है और कैसे काम करता है लोगों को नहीं पता। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है। 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन बना। तब से लेकर अभी तक में 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा बिटकॉइन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। और लगातार जो है वो 2140 तक जो है ये मार्केट में सभी बिटकॉइंस 2 करोड़ 10 लाख जो है वो डिप्लॉय होने वाले हैं। कैसे ये काम करता है उसके ऊपर भी हम लगातार ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। फिजिकल फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम करते हैं, उसमें भी आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कीजिएगा। अपने लोकल एरिया में अपनी कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट होकर वो देखिए कि कहाँ पर ये एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो कोर्सेज जो है वो रख सकते हैं। फ्री कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। वॉलेट्स कैसे काम करते हैं, कोल्ड वॉलेट्स क्या होता है, हॉट वॉलेट्स क्या होता है, किस तरह से हम अपने डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को जो है वो हम सही तरीके से रख सकते हैं, उनके ऊपर भी लगातार हमें अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस समझना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर, जो इंफॉर्मेशन जो है वो एक या दो या चार जगह पर सेव होती है तो वो नियर अबाउट सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर, अगर मल्टीपल नोड्स के ऊपर अगर ये डिप्लॉय की गई है, सेव की गई है, रखी गई है, तो ये डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन हो जाती है। डिफरेंट टाइप के एक्सचेंजेस हैं, जैसे हाइब्रिड एक्सचेंजेस के अंदर बाइनांस से लेकर अभी तक में 750 से ज्यादा एक्सचेंजेस आ चुके हैं। और अभी नए तरीके के एक्सचेंजेस यानी कि BRC20 एक्सचेंजेस भी अभी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मार्केट प्लेसेस भी उस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं। जो हमारी करेंसीज होती हैं, जैसे फिएट करेंसी है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैं, इन सब के डिफरेंस जो हैं वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आते, उसके पर्पस ऑफ यूजेस समझ में नहीं आते। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो जो पॉपुलेशन जो है यानी कि उसकी जो यूजर बेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम होती है। जो जो लोग ये धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाइडर रेंज ऑफ मार्केट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप और एग्रीगेटेड वेबसाइट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम डेटा एनालिसिस के ऊपर जो है वो मार्केट को प्री जज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एनालिसिस करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मेटावर्स इंडस्ट्री, एनएफटीज इंडस्ट्री और बहुत सारे अलग अलग टूल्स जो होते हैं, जैसे डेफी हैं या एनएफटी फाइनेंस हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर अभी जो है वो ट्रेंड कर रही है। उसके साथ में अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस में देखिए कि मेटावर्स जो है वो एक मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से कैसे अलग होता है, जैसे ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से अलग होती है, वैसे ही मेटावर्स भी एक दूसरे के मेटावर्स से अलग होते हैं। कोई मेटावर्स वेब बेस्ड है, कोई मेटावर्स के ऊपर जो है वो सिर्फ गेमिंग होता है, कोई मेटावर्स के ऊपर सिर्फ जो है वो 2 डायमेंशनल वेबसाइट्स को जो है वो डिजाइन डिप्लॉय किया गया होता है। मेटावर्स कैसे काम करता है, वो कैसे ग्रो करता है, उसके भी अलग अलग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट ट्रेनिंग सेमिनार्स जो है वो लगातार आपको फिजिकल और इस तरह से जूम के ऊपर जो है वो लगातार दिए जाते हैं। आज का जूम जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन का जो है वो फ्रंट आपको देने के लिए एक जो है वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इंफॉर्मेशन रहेगा। जो लोग इसमें ऑलरेडी 2 4 बार या 10 बार 20 बार भी अगर वो उन्होंने आया हुआ है तो भी उनको जो है वो आज बहुत सारी चीजें नई दिखने वाली है, नई समझने वाली है। नए लोग जो है उनके लिए तो ये सभी चीजें नई हैं, लेकिन जो पुराने हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है वो चीजों को समझने के लिए अपना दिमाग जो है वो खुला रखे। अगर आप सब लोग जो है मेरी आवाज सही तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मेरी बातों को जो समझ रहे हैं, तो वो फटाफट जो है वो थंब दिखा दे, हैंड्स दिखा दे, हैंड रेस दिखा दे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल फुल जो है वो कैसे बातें सुनते हैं, कैसे ये जूम के ऊपर ये बिजनेस होता है, कैसे लोग जो है वो अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। सब लोग जो है वो रिएक्शंस दीजिए ताकि पता चले कि जो है वो लोग जो है वो हर एक बात को जो है वो समझ रहे हैं। सो कैसे ये रोड मैप कैसे काम करता है, हर साल कैसे काम होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर भी लगातार ये काम होगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स मेटावर्स के क्या होते हैं, हर मेटावर्स के अपने अपने
यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो आप भी कैसे अपने अपने प्रोजेक्ट को और ज्यादा चीजें समझ पाएं, हम एज अ कम्युनिटी क्या हमारा रोल होता है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का क्या रोल होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो बहुत सारी चीजें इसी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो कवर अप करने वाले हैं। मेजर जो है वो 5 टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मेटावर्स जो है वो काम करता है, जिसमें हार्डवेयर जो है वो VR डिवाइस होता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जिसको हम कहते हैं वो होता है। साथ में बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग होता है, जिससे डेटा एनालिसिस से लेकर माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो यूजर बेस को किस तरह से इंटरैक्टिव रखा जाए, और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से AI और AR और VR और मिक्स रियलिटी को भी साथ में कनेक्ट कर पाए, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक जो कहते हैं कि ग्लोबली रहे, वर्ल्ड वाइड रहे, और जब तक रहे तब तक जो इंटरनेट जिंदा है। अभी IRCTC यानी कि हमारे इंडियन रेलवे ने पॉलीगोन के साथ में अयोध्या में जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो भक्त हैं, वो जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनके लिए टिकट जो है वो NFT में प्रोवाइड की गई, कि जो लोग अगर अयोध्या जाते हैं तो उनके पास ये प्रूफ होता है कि ये जो लोग हैं, ये NFT के माध्यम से इनके पास प्रूफ है कि ये तारीख को इतने बजे जो है वो इस ट्रेन के माध्यम से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे। और वो तब तक वो इंफॉर्मेशन रहेगी जब तक इंटरनेट जिंदा है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट भी अभी ले रही है। लोग समझ रहे हैं कि NFTs की क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों NFTs होती हैं, कौन सी NFTs वैल्यूएबल होती हैं, कौन सी कलेक्टेबल होती हैं, कौन सी यूटिलिटी वाली होती है, कहाँ कौन सी NFTs को डिजाइन किया गया है, किस तरह से डिजाइन किया गया है, वो आर्ट की NFT है या किस ब्लॉकचेन के ऊपर उसको डिजाइन किया गया है, कौन सी पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, वो क्रिप्टो करेंसीज जिससे ये खरीदी बेची जा सकती है, साथ में उसको बैकएंड में उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रुपीज में उसको पे करके भी वो NFTs आपके पास कैसे आ सकती हैं। जब प्रोविजन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब से ये इंडिया में हिंदुस्तान में भी लागू पड़ चुका है, तो वहां से बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं वो अब इंडिया में आकर काम करना चाहती है, जिसमें पहली कंपनी जो है वो बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई है, जिसका नाम है भारत बॉक्स। सैंडबॉक्स कंपनी का ही एक वन ऑफ द पार्ट है भारत बॉक्स। जिस तरह से डिसेंट्रलैंड के बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग जो हैं वो मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनियां डिजाइन करके जो डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह से मल्टीपल जो है वो अब इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। 5G इंटरनेट भी कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो उसके ऊपर। तो दिस इज अपडेट वंस अगेन, एक बार अपडेट आ रहा है कि IPO2 NFT का जो है वो परचेज होने का जो है स्टार्ट हो चुका है, और उसमें पार्सल्स जो हैं वो ई कैश से जो है वो आप लोगों ने खरीद लिए होंगे। बहुत सारे ई कैश के अभी भी शायद एक जो आज का लास्ट दिन, शायद ये कह सकते हैं कि 12 बजे तक जितने हो सके उतने ई कैश से भी जो है पार्सल्स बाय कर सकते हैं। ये 13 तारीख का था, लेकिन टेक्निकल एरर्स की वजह से 2 दिन मिले, ऊपर से जो एक्सटेंड हुए हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को ये बेनिफिट मिला है। जिन लोगों ने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास नहीं पहुंची है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो सीख जाए कि ये कैसे इसको खरीदा जा सकता है, कैसे ही कैश का जो है वो यूज किया जा सकता है, और फिर उसको जो है वो NFT परचेज की जा सकती है। तो IPO2 का ये जो जितना भी आपने परचेज किया है उसका जो ब्लॉक जो है वो प्री परचेज में आपके पास जो है वो होल्ड हो जाता है, और जैसे ही IPO2 लॉन्च होगा उसके बाद तुरंत जो है वो आपके वॉलेट के अंदर आपको जो है वो पार्सल्स डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि कैसे ये प्रोसीजर जो है वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉन्चिंग से पहले आपके पास जो है वो सब चीजें जो है वो परचेज के लिए आपको दी जाती हैं। फैसिलिटीज जो है वो जो है वो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो IPO2 जो है वो अब लॉन्च होने वाला है। सो अभी आप सब लोग प्रिपेयर रहें, ताकि जो है वो आप हर एक चीज जो है वो सही टाइम पे, जैसे ही लॉन्च होते ही आप सब चीजें खरीद पाए, पार्सल्स और सभी चीजें। राइट। सो क्या होता है मेटावर्स? सो मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों को एक इंटरैक्टिव स्पेस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। एक एक्सपेंसिव जो पूरा इंडस्ट्री है, यानी कि जो IT इंफॉर्मेशन हम कहते थे, याद है हम सब लोग जो बोलते हैं, जैसे WWW जब से शुरू हुआ, तब से वर्ल्ड वाइड वेब जब से शुरू हुआ, तब से लेकर, यानी कि वेब 2.0 की दुनिया से बात के लेकर अभी तक वेब 3.0 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW से लेकर अब जो है वो इंडस्ट्री WWW से निकल कर अब जो है वो मेटावर्स की इंडस्ट्री पे आ रहे हैं। यानी कि हम कहने के लिए वो डोमेन होगा, लेकिन डोमेन जो है वो .com से निकल कर
कई सारे ऐसे पर्पजेस के नाम के साथ में ये आ सकता है। डोमेन को ज्यादा उसमें जो है वो इतना जो है वो एम्पावर किया गया है, साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी उतना ही बड़ा एम्पावर किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी 900 लोग या 1000 लोग जो हैं वो उसमें से थोड़े लोग अगर यूट्यूब पर चले जाएं, तो यहाँ पर भी जो लोग नए आ रहे हैं, जिनके पास लिंक पहुंची, जिनके पास यूट्यूब की लिंक नहीं पहुंची है, वो लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर ये चीजें देख सकते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के माध्यम से इसको जो है वो पार्टिसिपेट करें। सो ऑलमोस्ट आप देखिए, मेटावर्स की दुनिया में अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स में आप जैसे आप इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लीजिए, ताकि जो आप पता चलेगा कि आप जो है वो पूरे वर्चुअल लैंडस्केप के अंदर आप अपने आप में जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अभी तक के जितने भी मेटावर्सेस हैं उसमें वीआर डिवाइस के साथ में जैसे फेसबुक ने, यानी कि ओक्यूलस उसकी कंपनी का नाम है, वो फेसबुक का एक वन ऑफ द पार्ट है, उन्होंने एक वीआर डिवाइस बनाया। वो थर्ड वर्जन जो है वो अभी इसमें लॉन्च हो चुका है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप इमर्सिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वर्क रूम करके जो उनका एक प्रोडक्ट है, अगर आप उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तो आप पता चलेगा कि वर्क रूम करके जो उनका प्रोडक्ट है वैसा, जिसमें आप ये जैसे जूम मीटिंग करते हैं वैसे ही आप वर्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ में जो है वो आप इंडिविजुअल अपने एवेटर के साथ में मीटिंग कर सकते हैं। सो सिर्फ इतने से ही लिमिट नहीं वो रहता, लेकिन आप एक पर्सनलाइज्ड एवेटर आपका बना सकते हैं। और अब यहाँ एआई के माध्यम से ऐसे एवेटर्स बन रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ फोटो भी अगर आपने ऐसा रख दिया, तो वो फोटो अपने आप जो है वो गूगल ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि फोटो अपने आप वो जो है वो वीडियो की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और वो वीडियो जो कंटेंट आपने दिए हुए हैं वो कंटेंट लिपसिंग के साथ में जो है वो फोटो जो है वो आपको बोल देता है। इवन बॉडी बॉडी के जो मूवमेंट है वो भी कंप्लीटली जो है वो एआई के माध्यम से वो कंप्लीट हो जाता है। ये गूगल का प्रोडक्ट भी अभी थोड़े ही दिनों में वो लॉन्च, अभी एज ऑफ नाउ जो है वो गिटहब के ऊपर रन हो रहा है। और जो सॉफ्टवेयर के जानकार हैं वो उसमें अभी चीज़ें सीख रहे हैं। एआई के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी एज ऑफ नाउ अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन लोग फिर भी उसमें एंजॉय कर रहे हैं। चैट जीपीटी के भी, यानी कि ओपन एआई से लेकर मिड जर्नी से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसमें एआई की मदद से आप अपने जैसा ही दिखने वाला एक एवेटर भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो फेस जो डिटेक्शन होता है, या आईज हैं या फिंगरप्रिंट्स हैं, ये आगे जाके और ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। इसीलिए एवेटर को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि डीप फेक और एआई की वजह से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, 1400 से ज्यादा एआई के टूल्स अब मार्केट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 30 से 40 टूल्स ऐसे हैं जो फ्री में हैं, और वो फ्री टूल्स को इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो कर पाते हैं। वीडियोस बनाना, ऑडियोज बनाना, गाने बनाना, अपने आवाज़ में पूरे गाने रिकॉर्ड करवाना। आपने देखा होगा मोदी जी का भी गाना जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा एआई में, एआई के ग्रुप्स में जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स और ये जो हैं वो स्पीचेस और आवाज़ जो है वो एआई के माध्यम से, यानी आगे का जो जमाना है वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन का आने वाला है। तो मेटावर्स की दुनिया में एक रियल टाइम सोशल इंटरेक्शंस आप जो है वो कर पाते हैं, जहां पर आप उसी दुनिया में जाते हो जहां पर जो है वो लोग बात कर सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड जो जहां पर जैसे हम और आप अभी जूम पर हैं, तो एक अलग सी इंटरनेट की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैसे ही आप सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो मेटावर्स के ऊपर जो आपका उसका हार्डवेयर है, 3D हार्डवेयर जो हम जो कहते हैं कि हैंडसेट है। जैसे एप्पल ने जो लॉन्च किया वो 3.5 लाख का है, सैमसंग ने लॉन्च किया अभी, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आ रहा है। इवन लिनक्स भी अपना प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बिजनेस में बहुत सारी अपग्रेडेशंस एक साथ में जो है वो फ्यूचर में दिखने वाली है। तो ये अगेन वंस अगेन एक अपडेट आया है। तो अपडेट में ऐसा है कि मेटा सॉइल वर्स का IPO2 एनएफटी जो है वो अब थोड़े दिनों में लॉन्च होगा, ताकि जिसमें आप एनएफटीज को परचेज कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। और जो वो बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं, लेकिन माइक्रो इन्वेस्टर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि पार्ट ऑफ पार्सल से भी अब मेटा सॉइल वर्स IPO2 में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जो $500 के मल्टीप्लीकेशन में है, $1000 के मल्टीप्लीकेशन में है। और अगर पूरा पार्सल है अगर आपको चाहिए, तो वहाँ $8000 का एनएफटीज है। यानी कि वो पार्सल में कन्वर्ट होने के लिए $8000 का एनएफटी जो है वो जो है वो पूरा
कंबाइन किया जा सकता है, तो कैसे इस एनएफटीज को बाय सेल किया जा सकता है, कैसे पार्ट ऑफ पार्सल्स में आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्म जो चीज़ें जो है वो आपको एक आध दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आप इसके फैमिलियर हो जाओगे। अगर आपको गूगल पे, फोन पे यूज करना आता है, अगर आप व्हाट्सएप और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत कोई ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस नहीं है। आप आराम से जो है वो मार्केट प्लेसेस में या वॉलेट्स में इसका इस्तेमाल करके आप जो है वो जो है वो सब चीज़ों में पार्टिसिपेट आईपीओज में कर सकते हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है पूरी, यानी कि जहां पर आप रियल एस्टेट्स के लेकर हर एक चीज में जो है वो आप डिजिटल एसेट्स को बाय कर सकते हैं, वर्चुअल करेंसीज को और गुड्स को जो है वो आप रीडिफाइन कर सकते हैं, और ई कॉमर्स को एक पूरा जो है वो रीडिफाइन करना और उसको रिफॉर्म करने के लिए ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। यानी कि आप समझो कि जो सब्जी मंडी जिस तरह से आप फील करते हो, या जो मार्केट जो आप दिलचस्पी करने जाते हो, सुपर मार्केट में जिस तरह से आप खरीदी करने जाते हो, वही सेम माहौल जो है वो आपको घर में बैठ के मिले, वैसा मेटावर्स के जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में भी वो डिजाइन किया जा रहा है। यानी कि एक के साथ साथ में खरीदी का भी एक्सपीरियंस जो है वो यूनिक चीजों को लेकर जो है वो डिजाइन मेटावर्स में उतना ही है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि आप रेगुलर जो चीजें खरीदते हैं या देखते हैं या पसंद करते हैं, या आपकी प्रोफाइल जिस तरह से है, अगर आप डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर की चाहिए, अगर आप मार्केटिंग वाले हो तो मार्केटिंग की चाहिए, आप गृहिणी हो तो गृहिणी वाली चाहिए। तो जो चीजें आप देखना पसंद करते हो, सुनना पसंद करते हो, वही आपके सामने आए, उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आपके सामने आए, या उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो ये सब चीजें आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको एक सुपर हीरो की तरह आपको जो है वो सब चीजों को मदद करे। ये वर्चुअल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज रहेगा, जिसमें आप अमेजिंग चीजें जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, जो चीजें फिजिकल दुनिया में जो आप करते हो या इंटरनेट की दुनिया में आप करते हो, वैसे ही आप उसके वर्चुअल एडवेंचर्स कर पाए, यानी कि पहाड़ चढ़ना, कुश्ती करना, जिम करना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप मेटावर्स के अंदर कर सकते हैं। दोस्त बनाना, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना, बड़ी बड़ी इवेंट्स में जाना, लॉन्चिंग्स में जाना, गाने लॉन्च करना, एडवेंचर्स एडवेंचर्स करना, नई नई चीजें करना, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, हॉबीज जो आपको अच्छी लगती हैं वो करना। और कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी आपको एक नई नई जो यूनिक चीजों के साथ में आपको कॉन्सेप्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गाइडेंस मिलना, कि आप जो है वो और ज्यादा चीजों को अपग्रेड कर पाए। और ये आपके एवेटर्स के साथ में आपका एक वर्चुअल आपको एक साइड किक मिले, ताकि आप जो है वो अपने ये जो आपका डिजिटल जो फेस है वही आपका एक ब्रांड बने, और आप जो है वो वर्ल्ड में आप जैसे सोशल मीडिया में जैसा आपका अकाउंट है, वैसे ही वो एवेटर भी आपका सबका जो है वो दोस्त बने। होप आप सब लोग जो हैं उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली बार आए हुए हैं, तो शायद जो है वो लैंग्वेज में या जो शब्द हैं वो अगर उनको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही ना समझ में आए या थोड़ा बहुत समझ में आए, ट्राई करना इसको समझने के लिए, क्योंकि इतना भी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये दिखता है या लगता होगा शायद, अगर ऐसा। लेकिन आप अगर इसको बार बार सुनना शुरू करोगे तो आप बहुत कुछ चीजें जो हैं वो आराम से जो है वो आप इसको कर पाते हैं। गिव मी अ सेकेंड। यस। सो एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक इनकम जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। यानी कि आप समझो कि अगर आपको हर एक चीज आपको एआई के माध्यम से करनी है, अभी आपने चैट जीपीटी में एक नया वर्जन आया जो पेड वर्जन में डेल ई है, जो अगर आपने देखा होगा तो उसमें वीडियोस बनाना, डिजिटल एसेट्स को और ज्यादा अच्छे से डिजाइन करना, वो हर एक डिजिटल कंटेंट को, आर्ट वर्क को, हर एक चीज में डेल ई एंड चैट जीपीटी। अभी आप समझो डेल ई जो है वो $20 पर मंथ का जो है वो उसमें चार्जेस लगते हैं। 4.5 और 5 चैट जीपीटी जो वर्जन आ चुका है वो भी एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आया है, ज्यादा लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
वर्ल्ड बिजनेस में जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी पहुंचा रहे हैं। यस, सो वी हैव 31 मार्च तक जो भी अपना सेल हो रहा है उसमें टीएसबी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारा ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सेलेंस अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट जो है दी सॉइल वर्क्स में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ जो वो होने वाला है। उसमें आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास बोनांजाज हैं, तो आप उसके ऊपर लगातार जो है वो अपने आप को ध्यान रखें और चीज़ों को अपग्रेड करें ताकि जो है वो लोग आपको समझ पाए। सो ये हमारी पूरी टीम को अगर आपको वहां पर मिलना है दुबई में, अगर आप उन चीज़ों उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आगे के डेवलपमेंट्स और ग्रोथ को जानना चाहते हैं, तो आपको हमारी जो ये टीम को मिलने के लिए ज़रूर दुबई के जो है वो इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए, आपका थॉट प्रोसेस ग्लोबल बनाने के लिए आपको इंटरनेशनल एक्सप्लोजर्स को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ इंडिया इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कैसे एक्सपोज होते हैं, कैसे बिजनेस के लोग जो है वो कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे को मिलती हैं, बातचीत करती हैं, और कैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्लोबली आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें बातचीत से और चीज़ें की इंफॉर्मेशन के पास ऑन से आप ये सब चीज़ें वहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आप हमारे यंगेस्ट सीईओ मिस्टर रविंदर बंगड़, हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सतीश मोस्ट्रा, हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख, उन सभी के साथ में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स से मिलना चाहते हैं, बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको जो है नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी एग्जीबिशन हो रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए ताकि आप जो है इन चीजों को देख पाए। जब आप लास्ट टाइम पे जो लोगों ने आइकॉनिक फाइनेंस एक्सपो में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहां पर न्यूज मीडिया और सभी चीजें इंटरनेशनल मार्केट के लोग जो है वहां पे आए थे, वर्ल्ड के लोग जो हैं उन्होंने हमारे स्टॉल को विजिट किया था, और सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट में पास ऑन की जाती हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में बात करते हैं। कई बार ये होता है कि कोઈને गुजराती खबर પડે છે तो गुजराती में बात करे, कोणाला मराठी समजतात तर ते मराठीमध्ये बोलता। जे किसी कई लोग जो है वो द पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे टॉक इन इंग्लिश, द पीपल अंडरस्टैंड इन पंजाबी। ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ समझते होंगे तो उत्थे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ गल कर सकते हैं, हरियाणवी में गेलपड़ी समझ सकते हैं, आप लोग बातें कर सकते हैं सभी चीजें में। अगर आप आंध्र में हैं तो एरा उन्ना आंध्र करके आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, आप तमिल में हैं तो तमिल में बात कर सकते हैं। हर एक कंट्री के लोग यानी हर एक स्टेट्स के लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। अगर आप थाई में थाईलैंड के हैं तो आप सवारी काप कर सकते हैं, अगर आप कोरिया में हैं सो काम सी मदा कर सकते हैं। एवरी कंट्रीज एंड एवरी स्टेट्स पीपल आर देयर वेयर टू यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टॉक, वी कैन डिस्कस विद देम। आप हर लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता है, कैसे दुनिया में लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। हर जगह पे आप ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास ऑन कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ में, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी यादें जो है वो सजो के जाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करके जाते हैं, बातचीत करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ में। अगर आप ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट में जाना चाहिए। तो वंस अगेन द अपडेट इज देयर कि मेटा सॉइलवर्स जो है वो अपनी लेयर 1 की ब्लॉकचेन जो है वो अप्रैल महीने में जो है वो लॉन्च करने वाला है, और डेट है जो अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि 19 तारीख को जो है वो इवेंट जो है वो वहां पर होने की जो है वो प्लानिंग्स जो है वो हो रही हैं। लगातार जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स भी अब जो है वो रिटर्न में होने की तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत जल्द जो है या 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो इसके ऊपर बहुत और ज्यादा लोग जो इसको विजिट कर पाए, उसके ऊपर लगातार जो है वो डिस्कशंस चल रहे हैं, प्लानिंग्स चल रहे हैं कि कैसे ज्यादा लोग जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के इवेंट्स में आ सके। लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी अभी तक के जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं उसमें सुपर डुपर पावरफुल, जैसे हम SHA-256 में जिस तरह से बिटकॉइन को देखते थे, वैसे केकाक 256 को इथेरियम में देखते थे, वैसे ही दूसरे जितने भी एल्गोरिदम्स में डिजाइन किए हुए कार्डानो हो यानी कि एडीए हैं या पोलीगोन है, पोल्काडोट हैं, ये हर एक ब्लॉकचेन के जितने भी ट्रांजैक्शंस वहां पर होते हैं, जहां पे डेली ट्रांजैक्शंस और मंथली ट्रांजैक्शंस और हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस को ऊपर अगर एनालिसिस करके देखा जाए, साथ साथ में उसकी गैस फीस जो GWI में काउंट होती है या फिर उनके मानांक में जो काउंट होती है, उसमें भी कितना उनका रेवेन्यू मॉडल्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ जो BRC-20 जो नया एक पूरा वर्जन जो बना हुआ है इथेरियम 2.0 के ऊपर, उसके ऊपर भी लगातार किस तरह से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वो भी आप चीजों को आगे जाके देख सकते हैं।
वर्ल्ड बिजनेस में एनएफटीज के ऊपर देखो मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। कल का आज का जो मार्केट है वो $22 मिलियन का मार्केट 24 घंटे का एनएफटी के ऊपर हुआ है। यानी कि एक तरफ बिटकॉइन जो है वो -7% का डाउन दिखा रहा है, जहां पर एनएफटीज को जो है वो $22 मिलियन की जो बिजनेस जो है वो दिखाई दिया रहा। आज की बात कर रहा हूं। तो ये मोर और लेस जो है वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर जितनी एक्साइटिंग थी उससे कई गुना ज्यादा जो है वो ब्लॉकचेन और एनएफटीज को लेकर, एनएफटी फाइनेंस को लेकर, फॉरेक्स को लेकर, एनएफटी का जो क्रिप्टोज को फॉरेक्स के साथ में यानी कि फिएट करेंसी को एनएफटीज के साथ में कंबाइन करने की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के ऊपर जो दिख रही है, एक्साइटिंग चीजें हैं, बहुत नए प्रोडक्ट्स और नई चीजें की उम्मीदें बढ़ रही हैं। एनएफटीज के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी एक ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहे हैं, 22 मिलियन। इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट इस मार्केट की, जहां पर एक बाजू क्रिप्टो डाउन, वहां पर मार्केट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ब्लॉकचेन और की टेक्नोलॉजी के पीछे अगर हम बात करें तो ये एक सिक्योर पेमेंट गेटवे की तरह ये काम कर सकता है, और ये एक आइडेंटिटीज को इनक्रिप्टेड रखकर ये इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर सेव करने के लिए, और आईपीएफएस सर्वर्स के ऊपर, यानी कि फिर वो एडब्ल्यूएस सर्वर हो या हम नए सॉफ्टवेयर के साथ में अगर इसको देखें, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर के साथ में देखें, तो ये सभी जगह पर जो है वो सर्वर्स का जैसे डेटा अगर है, अगर हम समझे कि 1 GB डेटा भी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर उसको सेव करना है तो एक बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है। अगर ब्लॉकचेन में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा अगर 1 GB का है तो एक बहुत बड़ा डेटा बनता है, वो भी रखा जा सकता है, क्योंकि डेटा हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से जो इंफॉर्मेशंस ब्लॉक टू ब्लॉक कनेक्ट की जाती हैं, जो यूनिक होती हैं और जो जेनेसिस ब्लॉक तक जो है वो कनेक्ट होती है, वो सभी ट्रांजैक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लेकर हर एक जो डेटा के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जो जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी अपने सभी यूजर्स को जो है वो सेफ देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जो टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर जो काम करने वाली कंपनीज जो हैं वो अपने लेजिटिमेट बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रूप रहेगा जो टेक्नोलॉजी। कल जो है वो हम इसी इसी प्रेजेंटेशन को इंग्लिश के अंदर 45 मिनट के लिए हम रखने वाले हैं। अगर आप सब लोग अगर उसमें अपने अपने इंटरनेशनल, या तो फिर जिनको इंग्लिश में इन चीज़ों को समझना है उनमें अगर आप ये चाहते हो कि हाँ ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश में हमें इनवाइट करना है, अगर हाँ है तो कल ये सेम लिंक के ऊपर आप जो है वो उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ से अग्री हो कि ये चीज़ एक इनिशिएटिव ऐसा लेना चाहिए, एक ट्राई जो है वो कर रहे हैं कि हम लैंग्वेज में, इंग्लिश में हमें ये प्रेजेंटेशन जो है वो करना चाहिए। सो अगर इन चीज़ों में अगर यस हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कितने कितने लोग हैं जो इस चीज को जो है वो मानते हैं। सो फटाफट यस लिखिए कि यस इंग्लिश, यस इंग्लिश में होनी चाहिए। जो अच्छा नो भी कहने वाले लोग हैं, वेरी गुड। तो नो कहने वाले भी तो ठीक है, नो जो लोगों को नहीं है वो हिंदी में तो है ही है, जिनको इंग्लिश में है किसी को उनको वहां पर इनवाइट करने के लिए बता रहे हैं। तो ग्लोबल बिजनेस बढ़ रहा है, इंटरनेशनल आपके जो लोग इनवाइट करना है अगर आपको, तो ये सेम लिंक जो है वो कल आपको जो है वो इंग्लिश में उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में इंटरनेशनल समझना है उनके लिए, राइट। बाकी जो लोगों को हिंदी में समझना है उनके लिए तो हम मैं हिंदी में बात बता ही रहा हूँ, राइट। सो जो लोग हिंदी में नहीं सुन पाते, जो लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, सेम लिंक में आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी ये लिंक जो है वो वापस आपको इंग्लिश के लिए जो है वो सेंड की जाएगी, रीसेंड की जाएगी, ताकि आप इसको और ज़्यादा से अच्छे से समझ पाए, राइट। सो इंटरनेशनल आपकी टीम को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सो कल का जो है वो इनिशिएटिव जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो बहुत दिनों बाद, ऐसे तो कह सकते हैं कि एक अरसे के बाद जो है वो इंग्लिश में हम वापस जो है वो अपनी कम्युनिटी को और ग्लोबल बिजनेस में चीज़ों को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप उनका एजुकेशन जो है वो बड़ा उनको दे सकते हैं, अपने बिजनेस को समझा। तो वंस अगेन अपडेट कि हमारा ब्लॉकचेन जो है वो एक बार इम्प्रोवाइज हो जाएगा, एक बार उसको रूटीन में आ जाएगा, उसके 6 महीने तक में हम जो है वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन के साथ में अपने प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। यानी कि हमारे ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा हाइब्रिड एक्सचेंज, उसके पहले शायद हो सकता है कि एक और अच्छा खासा न्यूज आ जाए कि जहां पर फॉरेक्स या दूसरे मार्केट के साथ में कनेक्टेड होने वाली चीजें भी मार्केट में हम डिलीवर यानी कि देख पाए, और प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल टीम उसके ऊपर लगातार काम कर रही है।
लॉ की टीम इसके साथ काम कर रही है, कोर मैनेजमेंट लगातार उसके ऊपर काम कर रही है, मैनेजमेंट भी उसके ऊपर लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि कैसे इस मार्केट को जो है वो और ज्यादा, ये ग्रीन मार्केट को और ज्यादा जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। ये जो बुल रन है वो अगले 1 साल तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, जितना भी ये बुल रन रहता है उस बुल रन में मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो हैं वो कवर अप किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर बेयर मार्केट भी आता है तो हम अच्छे खासे एजुकेशन की वजह से जो है वो उसको सरवाइव कर सके और अच्छे अच्छी लेवल के ऊपर जो है वो इस मार्केट को देख पाए। सो मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स जो है वो मार्केट का ट्रेंड होता है, वो अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने हाथ में जो है वो उन चीजों को अगर समझ के किया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इस मार्केट से किया जा सकता है। सो नॉन फंजिबल टोकन की इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ रही है। एंटीक आइटम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, हर चीज की एनएफटी बन रही है और उसका मालिकाना हक जो है वो ओनर का रहता है, यानी ओनर डिसाइड करता है कि कैसे किस चीज को खरीदा जाए, कितना बेचा जाए और यस। सो एक्सचेंज जो है वो एनएफटी मार्केट प्लेस में आपको ट्रेड करने के लिए, एमएसपी के बेनिफिट्स को लेने के लिए, यूएसडीटी में हर एक चीज को और बोनसेस को लेने के लिए एक्सचेंज जो है, वॉलेट्स जो है वो आपको अपडेट किए जाएंगे, ताकि जो है वो आप इसको आराम से जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ में उसको सर्विस दे पाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो है उन चीजों को इजीली ट्रेड कर पाए। सो ये एक्सचेंजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो डिजाइन करके दी जा रही हैं, ताकि जो है वो और ज्यादा अच्छे से हम जो है वो मेटा सॉइल वर्स में हम आप आगे बढ़ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री का अवेयरनेस जो था वो मेटावर्स इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन और हर एक चीज में आप कैसे काम कर सकते हैं। और साथ साथ में मेटावर्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मेटा सॉइल वर्स वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लेकर आ रहा है मेटा सॉइल वर्स। टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को लेकर लगातार आगे बढ़ने के लिए आप समझो समय ऐसा है कि अगर आप राइट टाइम पे राइट चीजें कर लेते हैं तो एक अच्छी चीज काम में आती है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये मेटावर्स और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो एक सर्टेन लेवल में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, क्योंकि ये ट्रेंड सेटर्स हैं, नई जमाने की चीजें हैं और ये इसको लगातार वर्ल्ड जो है वो देख रहा है। मेटावर्स की दुनिया में, 3.0 की दुनिया में 3 डायमेंशनल हार्डवेयर के साथ में कनेक्ट होकर मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑग्मेंटेड रियलिटी के साथ में सो ये मेटावर्स का नया प्रोडक्ट और बहुत सारी चीजें अगर आपको देखनी है इंटरनेशनल मार्केट में तो आप दुबई, आप जो है वो 2024 के दुबई में अप्रैल में जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज इवेंट होने वाला है। तो आप सब लोग जो है अपने अपने एक्टिव मेंबर्स के साथ रेगुलर बेस के ऊपर अपने अपडेट्स लेते रहिए। प्रोजेक्ट की ओर से भी टेलीग्राम ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे भी आप अपने आप को अपग्रेड रखें, जितना जल्दी हो सके उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि और ज्यादा लोग जो है वो वहां पर पहुंच पाए और इवेंट्स में जो है वो अपनी अपनी चीजों को ले पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने जा रही है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेड 2030 तक का मार्केट देखा गया है और 45.4% का CAGR, यानी कि इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इतना बड़ा CAGR, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो इतना होने की वजह से एक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट में ये 2.5%, 5%, 6% के आसपास होता है और वर्चुअल रियल एस्टेट में ये 45 है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स, सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड या जितने भी अभी तक के बने हुए मेटावर्स में देखते हैं तो वो 50-100 डॉलर की चीज जो है वो 10-1 हज़ार डॉलर तक जो है वो सेल हुई है, यानी कि ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। जैसे फेसबुक ने अपना नाम चेंज करते ही 500% का ग्रोथ लिया था, वैसे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हर बार नई चीजें जो है वो मिल रही हैं और इस बार जो है वो फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कार्बन न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हुआ है और पूरा बिजनेस सेंटर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये कैसे, साथ साथ में इसमें प्राइम प्लाजा है जहां पर एक सेंटर हब होता है, जहां पर AI कैंपेन करता है आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बड़े बड़े 50 इंडस्ट्रियल जोन्स बने होते हैं जहां पर 5,000 से ज्यादा की लीडिंग ब्रांड्स को वहां पर एंटरटेन किया जाता है। टोटल 5 लाख फाइन आर्ट लैंड पार्सल्स हैं, टाइल बोल सकते हैं उसको, जगह बोल सकते हैं, वेब स्पेस बोल सकते हैं। तो ये एक पूरी सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी के साथ में ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। लीडिंग इंडस्ट्री को साथ में रखा हुआ है, वर्चुअल वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी
तो 2024 बहुत ही बड़ा साल रहने वाला है, क्योंकि टीयर 1 की एक्सचेंज रहेगी। ये एक्सचेंज नॉर्मल एक्सचेंज न रहते हुए टीयर 1 का एक्सचेंज रहेगा, जो मार्केट के बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये कनेक्ट होगा, जिसमें फॉरेक्स, एनएफटीज, फिएट करेंसीज और क्रिप्टोज के लेकर, और बहुत सारे अदर एनुअल यील्ड को लेकर जो काम करते हैं, जो ग्रुप वॉल्यूम को लेकर जो ट्रेड करते हैं। यानी कि आप जैसे अगर समझो बड़ा वॉल्यूम के साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल एक बार जो ट्रेड करना शुरू करता है, तो मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा बुल मार्केट रन लेकर आता है। वो सभी चीजें साथ में कर सकते हैं। साथ में आपको ये सभी चीजों में हेल्प करने के लिए मेट्रा रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में ये कनेक्ट होता है, और ये पूरा मेटावर्स जो है वो आपको एक डिजिटल एरा में स्काई रॉकेट का आपका बिजनेस को करने के लिए काम में आएगा। ये 100% जो है वो एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। यानी कि आपके इंटरेक्शंस को इंटरेक्ट करेगा, एनरिच करेगा। ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के साथ में ये काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में काम करेगा। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने ऑलरेडी मार्केट में 3 डायमेंशनल मैप को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और आगे के इस इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, ओशियन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फार्मिंग को लेकर इसकी वॉक थ्रूज कैसे रहेंगे, कैसे प्राइम प्लाजा से लेकर आप पार्सल्स को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, कैसा व्यू रहेगा, और ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसी अनरियल इंजन जैसे बड़े सॉफ्टवेयर को कैसे आगे जाके यूज करने वाली है, एनिमेशन हो या डिजिटल डिजाइनिंग हो, वो हर एक चीज में जो है वो लगातार डेवलपमेंट्स जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो ये 50 बड़े बड़े जोन्स जहां पर हर इंडस्ट्री को कवर अप किया गया है, 5000 ब्रांड्स के साथ में ये कनेक्ट किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मेट्रा के साथ में आप हर एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइम प्लाजा में भी इतने सारी चीजें डिजाइन की गई हैं कि आप इनोवेटिव चीज से हर एक मीटिंग ग्राउंड्स मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। वैसे आर्टिफिशियल पहला प्रोडक्ट जो है वो रहेगा। G20 में भी आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री के बारे में इस बार डिस्कशन हुआ था, और इसी तरह से लगातार प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। सो पार्सल ऑफर जो है वो एनएफटीज का ओपन सी के ऊपर आप खुद देख सकते हैं, उसका ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। एनएफटीज के बाइंग सेलिंग का जो पहला राउंड था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है। और राउंड 2 के लिए अब जो है वो बहुत सारे पीआर एजेंसीज भी अब काम करना शुरू करेंगे, जिस तरह से बाइनांस के ऊपर, डिजिटल जनरल के ऊपर, बिटकॉइन, खलीज टाइम जैसे बड़े बड़े न्यूज हाउसेज में ये जो है लोगों को पता चल रहा है कि मेटा सॉइलवर्क्स का आईपीओ जो था वो पहली बार जैसे आया। जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह से इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हर एक चीज जो है वो राउंड 2 में भी एक बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो आप सब लोग जो है वो अपने चीजें तैयार रखें। इसे अलग अलग मार्केट प्लेसेस में आप इसको देख सकते हैं। एनएफटी स्कैन जैसे बड़े वेबसाइट्स या ओकेएक्स जैसे बड़े वेबसाइट्स के ऊपर जाकर, आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाकर या दूसरे अलग अलग मेटा एनएफटी मार्केट प्लेस में जाकर जो है वो आप आपके एनएफटीज को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। 2.0 का वीडियो जो है वो ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है, और आगे जो है वो चीजें बनती जा रही हैं। लगातार नए नई चीजें के साथ में आपको कनेक्ट करने के लिए आपको हर बार लगातार इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको दी जाती है। सो आप सब लोगों ने इन चीजों को सुना, समझा, जाना, तो आपको ये कैसा लगा? आपको ये मीटिंग, क्या चीजें आज आपने नहीं सीखी, कैसी चीजें आपको लगी? और आपको ये पूरा इंफॉर्मेटिव जो सेमिनार होता है, जो कम से कम समय में मैक्सिमम एक एक सेंटेंस के साथ में आपको चीजें डिलीवर की जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो आपको कैसा लगा? तो आप जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ साथ में अपने अपने टीम के साथ में। ये लगातार जो है वो आप इसमें ऐसी मीटिंग्स और सेमिनार्स में आते रहें, ताकि जो है वो आपको नए नए सरप्राइजेज भी आपको मिलते रहेंगे अगली बार के लिए। कल जो है वो इंग्लिश में रहेगा, परसों जो है फ्राइडे को जो है वो आपको और नए अपडेट्स और नई इंफॉर्मेशन के साथ में और नए बोनांजास के साथ में जो है वो आपके सामने जो है वो पैसे जो चीज़ें आपको कितना बिजनेस करना है, कैसे चीज़ें करनी है, वो हर एक चीज़ आपको मिलती रहेगी। राइट। सो आप अपने अपने टीम के साथ ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने लोगों को सिखाएं, समझाएं, और अच्छा बिजनेस करें। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग जो है वो इस तरह से आप लगातार हमारी मीटिंग्स में आते रहे, अपनी अपनी टीम के साथ कनेक्ट होते रहे, और अपने आप को अपग्रेड रखें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन एंड गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं कल इंग्लिश वर्जन में। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।